پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر سے تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں، یہ بڑی اہم خبر ہے۔ جہاز تیار ہو چکے ہیں، یہ بھی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، پولیٹیکل کلائمیٹ چینج۔ اچھا پتہ ہے، میں ایک سیاسی تجزیہ کار کو سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اب صفحہ ہستی سے مٹ گئی یا پی ٹی آئی اب نہیں آنے والی، تو وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ جماعتوں میں مشکل وقت آتے ہیں لیکن وہ پھر سے کھڑی ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو جائیں۔ تو خیر ابھی تو یہ پرندوں کی اڑان جاری ہے، اور اس بار ان ہواؤں کا رخ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب مڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی سے علیحدہ ہونے والے ارکان کی تیزی سے پی پی اور نون لیگ میں شمولیت کا امکان بڑھتا جا رہا ہے۔ جہاز بھی تیار ہو گئے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری بھی لاہور میں 3 دن کے لیے موجود ہیں، جہاں وہ آج پی پی میں شامل ہونے والے پی ٹی آئی کے سابق ارکان سے خطاب کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس قیام کے دوران چودھری شجاعت سے بھی ان کی ملاقات طلع متوقع ہے۔ یقیناً مفاہمت کے بے تاج بادشاہ کا لقب پانے والے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اسکائی از دی لمٹ، وہ کسی کو بھی کہیں بھی کیسے بھی کبھی بھی اپنا گرویدہ کر سکتے ہیں۔ گرویدہ آف کورس اپنی پارٹی میں شامل کر سکتے ہیں، اور یقیناً آصف علی زرداری صاحب کی بڑا ٹیلنٹ ہے۔ ان کے لیے ایک اور چیز سیرش بڑی مشہور ہے کہ اگر ان کا دشمن بھی ان کے پاس چلا جائے اور ان کے ساتھ 5 منٹ بیٹھ جائے تو وہ دوست بن کے اٹھتا ہے۔ ایسی شخصیت ہے، ایسی پرسنالٹی ہے، اس پیار سے ملتے ہیں، کہتے ہیں نا مصری کی طرح میٹھا، جس کی وجہ سے وہ ہر کسی کو اپنا دیوانہ کر لیتے ہیں۔ اور آصف علی زرداری صاحب تبھی مفاہمت کے بے تاج بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ میں ساری پارٹیز کو ساتھ لے کر چلے تھے۔ تو اگین when he is active anything is possible سیرش۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ چیزوں کو بازی پلٹ دیتے ہیں، چیزیں ایک دم چینج ہو جاتی ہیں، تو پھر نئی صف بندی ہو رہی ہے۔ نئی صف بندی ہو رہی ہے۔ اچھا سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری لاہور چلے گئے ہیں اور سندھ میں آ گئے ہیں جہانگیر ترین۔ وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جب جہاز پہ آتے ہیں تو پھر وہ بھی کچھ نہ کچھ کر کے جاتے ہیں، وہ بھی کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اب کتنے لوگوں کو توڑتے ہیں۔ اچھا اس وقت ہمیں علی گوہر صاحب نے جوائن کیا ہے، مسلم لیگ نون کے ممبر اسمبلی ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ علی گوہر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سر یہ جو اس وقت نئی تیاریاں ہو رہی ہیں، نئے ساتھی ڈھونڈے جا رہے ہیں، سب کو اپنی پارٹی میں لیا جا رہا ہے، آپ کی پارٹی بھی سر ایسا کچھ کر رہی ہے؟ آپ لوگ کی پلاننگ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ پولیٹکس کرنے کا تو ہر پارٹی کو حق ہے، کوئی بھی شخص نئی پارٹی بنا سکتا ہے اور آئینی اور قانونی طور پر یہ سب کا حق ہے، لیکن جو اس وقت صورتحال آپ بتا رہے ہیں، ظاہر ہے الیکشن اب قریب ہیں، تو ایسے میں جس طرح سے کہ اچانک ایک پارٹی جس کو آج تک ہم پولیٹیکل پارٹی ایزیوم کرتے رہے ہیں، اس سے انتہائی پوری قوم کو مایوسی ہوئی، جس طرح سے کہ ان کا بار بار کردار جو تھا، مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیے، پروٹیسٹ کے نام کے اوپر ملک میں ہنگامے کیے، پرتشدد کاروائیاں کی، اور ابھی جو حالیہ حالات بنے جو کہ پوری قوم نے دیکھا، انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں نے دیکھا، ساتھ ہمارے پڑوسی ملک نے بھی جس طرح سے مطلب خوشیاں منائی، کیونکہ یہ اس قسم کے واقعات ہمارے دشمن بھی نہیں کر سکے۔ تو یہ تو ہے کہ ایک تھوڑا سا ویکٹم تو آیا ہے، ظاہر ہے اب جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اس کو کوشش تو کریں گے کہ کوئی پارٹی بنے، کوئی پارٹی میں کسی میں لوگ جائیں، لیکن تو علی گوہر صاحب نون لیگ بھی ٹکٹس دے رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو شامل ہو رہے ہیں اس الیکشن میں؟ دیکھیں آپ نے شاید ہماری لیڈرشپ کی طرف سے اور کچھ میں بھی کل دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ یہ بیان تھا کہ ہم شاید لوٹوں کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے ہماری پارٹی کی طرف سے پالیسی، اور ویسے بھی ہمارے آپ کو پتہ ہے بالخصوص پنجاب میں تو تمام حلقوں میں آلریڈی ہمارے کافی کینڈیڈیٹس ہیں، اور اگر نہیں بھی ہوں گے تو ایسے لوگ مطلب ہے کہ جن لوگوں جو لوٹے ہیں وہ تو پھر بھی گھوم سکتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ میری ذاتی رائے بھی یہی ہے، اور شاید لیڈرشپ کا بٹ علی گوہر صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ جس طریقے سے اس وقت آصف علی زرداری صاحب سابق صدر ایکٹیو ہیں، آپ لوگ کی پارٹی اتنی ایکٹیو نہ ہوئی اور جو وہ آفر کر رہے ہیں اور آپ کی آفر اس سے اچھی نہ ہوئی تو سب وہاں چلے جائیں گے اور یقیناً وہ بھی الیکٹیبلز ہی ہیں؟ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی ہے کہ ہماری پارٹی پالیسی تو فی الحال یہی لگ رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں لیں گے جو لوگ پارٹیاں چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس
पंजाब में उनके पास क्वेश्चन है कि वो कैंडिडेट्स चेंज कर सकते हैं, हमारे पास वैसे भी कम है क्योंकि हमारे ऑलरेडी बड़े अच्छे कैंडिडेट्स हैं, इलेक्टेबल्स भी हैं। 2018 का इलेक्शन तो चुराया गया था, जहाँ कहीं हमारे कुछ कैंडिडेट हारे, वो हारे नहीं थे, वो हरवाए गए थे। आरटीएस सिस्टम था, लीडरशिप को जेलों में बंद किया था। सर जहांगीर तरीन साहब भी एक बहुत एक्टिव इस वक्त रोल में नजर आ रहे हैं और आप जानते हैं वो भी एक पावरफुल इंसान है सर पाकिस्तान में। देखिए जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अगर अपना कोई सियासी किरदार अदा करना चाहते हैं तो वो जरूर करें। मतलब है कि मैं नहीं समझता कि एज अ पोलिटिकल क्या उनको भी आप लोटा ही बोलेंगे या वो लोटे वाली कैटेगरी में नहीं आते? नहीं, देखें वो उतने नहीं। जहांगीर तरीन साहब ने पहली बात तो ये है कि उन्होंने इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं किया था, उनके साथ भी वही हुआ था जो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया था। बल्कि बाद में पता चला था कि इमरान न्याजी साहब, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन में भी न्याजी साहब का अपना हाथ था। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनकी कमर में भी छुरी घोंपी हुई है। अच्छा तो वो अली गौहर साहब, अगर आप वो कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, ये उनका कानूनी और आईनी सही है। तो अली गौहर साहब मुझे एक बात बताइएगा, अभी जो सारी सिचुएशन ये रही है, जो 9 मई के वाकयात है जिसपे आप लोग कहते हैं कि इसमें पीटीआई की सीनियर लीडरशिप डायरेक्टली इन्वॉल्व है और जियो फेंसिंग जो सारा कुछ हो रहा है, इसके बाद आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? क्या पीटीआई को इतना डेंट पड़ा है कि कमजोर हो गई, या फिर आपको टफ टाइम देंगे आगे इलेक्शन में, और इलेक्शन लड़ेंगे भी या नहीं? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? या पीटीआई हकीकी आएगी? नहीं, देखें आपने 2-3 सवाल किए। पहली बात तो ये है कि अगर पीटीआई में इतनी ही पॉपुलर थी कि उन्होंने हुकूमत बनाई, तो मुझे बताएं कि पिछली हुकूमत भी जो 2018 में बनी थी वो भी उनको इलेक्शन चुराना पड़ा था। नवाज शरीफ को जेल में बंद किया, मरीम नवाज साहबा को जेल में बंद किया, हमारी पूरी सीनियर लीडरशिप के ऊपर नैब के केसेस बनाए, हमारी पार्टी से लोगों को वफादारियां तब्दील करवाई गई, इलेक्शन से पहले टिकट चेंज करवाए गए, फिर भी नहीं आ रहे तो फिर वोट भी चोरी करना पड़े। तो अगर पीटीआई पॉपुलर जमात थी तो उस वक्त इन्होंने वोट की चोरी की है। दूसरी बात यह है कि अगर पीटीआई पॉपुलर जमात थी तो खान साहब ने जो अभी हालिया ज़िमनी इंतखाबात हुए थे जिसमें हर सीट पर खुद बने थे, अपने कैंडिडेट्स को टिकट दे देते। अली गौहर साहब, जब इलेक्शन 2018 का बता रहे हैं चोरी हुआ था और इनको बाकायदा हुकूमत में लाया गया था, तो ये 9 मई के वाकयात वाली नौबत ही ना आती। उससे पहले इनका मुतालबा ही एक था कि इलेक्शन अनाउंस करें, फिर हो जाते और पता चल जाता कि अवाम किसके हक में अपना फैसला देते हैं। मसला फिर क्या था? और अभी अक्टूबर तक की आवाजें हैं, उससे पहले नहीं कहा जा रहा। उसकी 2-3 वजूहात थी। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनली जो हालात थे मुल्क के और जो इकोनॉमी की हालत थी वो भी इजाज़त नहीं देती थी इंतखाबात की। दूसरी बात ये है कि मुल्क में कुछ सूबों में हुकूमत थी, जिस तरह से कि बलूचिस्तान है, सिंध है, वहाँ की हुकूमतें ख़त्म ना होती। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब भी यही चाहते थे कि मुल्क के सियासी हालात को डिस्टेबलाइज किया जाए। स्मूथली निज़ाम वही चल सकता है जब पूरे मुल्क में यकसा इलेक्शन हो। और अभी असम्बलियों की मुद्दत पूरी बड़ी थी। खान साहब तो कहते हैं कि मैं बरसर इख्तियार हूँ तो ठीक है, ना हूँ तो फिर चाहे वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे हटने से अगर चीजें ठीक होती हैं तो मैं हटने को तैयार हूँ, आप इलेक्शन कराएं, यही हाल है, सब मईशत डूब रही है। वो देखें, वो तो जब बंदा कुएं में गिरा हुआ होता है तो फिर वो यही कहता है कि मेरे अब उनके हटने से क्या, अब तो वो हट चुके हैं, अब हटने से क्या। जब वो इख्तियार में थे हम कहते थे कि आप अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं, आप इंतखाबात करवाएं, तब खान साहब ने नहीं। तो अली गौहर साहब, आप ये -1 की बात कर रहे हैं या फिर ये पार्टी हट चुकी है? देखिए जी, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये सियासी पार्टी थी नहीं, इन्होंने तो एक लिबादा सियासत का ओढ़ा हुआ है। 2013 में जो धरने हुए और उसके बाद जिस तरह से पीटीवी पर हमला किया गया, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई, असम्बलियों के जंगले तोड़े गए, वो भी आपने देखा। ये तो, और जब भी इन्होंने, लेकिन अली गौहर साहब, लीडरशिप में जो क़यादत लीडरशिप में मौजूद है वो कोई छोटे मोटे सियासतदान नहीं थे, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, और इससे पहले रहे, आप लोगों के साथ भी रहे, और अब इनके साथ थे, आप कह रहे हैं जमात ही नहीं थी। देखिए, इन लोगों ने हमेशा पुरतशद्दद, न्याजी साहब का जो अपना माइंड है और जो इनके
कुछ हवारी हैं, ये तो एक पुरतशद्दद लोगों का जत्था है। जाहिर है उसमें कुछ शरीफ लोग, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे लोग ही जो है, लेकिन मास्टरमाइंड तो न्यायी साहब ही है ना, डायरेक्शन तो उन्होंने देनी है। तो वो उन्होंने तो पूरी पार्टी को एक पुरतशद्दद पार्टी बनाया है। वो एक 25 मई के वाकयात थे, उस वक्त भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद डी चौक में मुझसे जब भी बात की, मुल्क में लॉकडाउन की बात की, जब भी बात की, आप इनके साथ शेख रशीद और दीगर लोगों के बयानात देखें, जला दो, गिरा दो, खून की होली खेल लो। और अभी जो 9 तारीख के वाकयात हुए उनमें तो आपने देखे हैं कि मतलब है कि ये तो काम हमारे दुश्मन ने भी नहीं किया है। अच्छा ये बताइए अली गौहर साहब के जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें आप अक्सरियत से अपने आप को हुकूमत बनाते हुए देख रहे हैं या इत्तेहाद के साथ? और अगर आप हुकूमत में आते हैं तो कुछ हालात बेहतर होंगे सर? मुल्क के मुआशी हालात एक लटकती हुई तलवार है हर किसी की गर्दन पे। देखिए बात ये है कि जो 2013 के इलेक्शन थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत दी थी। अगर 2018 में भी इलेक्शन ना चोरी होते तो आपके सामने हालात हम बहुत ज्यादा अक्सरियत देकर कामयाब हो रहे थे। यही तो वजह थी कि इन्होंने RTI सिस्टम बंद करके इलेक्शन कराया था। लेकिन ये है कि अक्सरियत से आएंगे आप? बिल्कुल, हम तो यही समझते हैं अक्सरियत से आएंगे, लेकिन ज़ाहिर है 4 सूबे हैं और मरकज की हुकूमत में मेरी ज़ाती राय ये है कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों की शमूलियत हो तो ये इकाइयों का शामिल होना एक मुल्क के लिए अच्छी बात है। यकीनन जिस तरह से कि अब पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल है, नून लीग भी है, दीगर हमारे सूबों की छोटी चौधरी शुजात की भी आज जरदारी साहब से मुलाकात है। ये कोई इत्तेहाद तो नहीं बनने वाला? जाहिर है अब ये भी अलग हो गए हैं दोनों भाई। Anything is possible. नहीं, चौधरी शुजात साहब तो पहले भी PDM का हिस्सा है ऑलरेडी भी। वो मतलब है कि वो साथ ही चल रहे हैं, इत्तेहादी जमात है। चलें देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन थैंक यू अली गौहर साहब, आपका कीमती वक्त हम अदा करेंगे। मशकूर हैं आपके, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। लेकिन यकीनन आपने वाज़ेह कर दिया कि नून लीग किसी भी ऐसे रहनुमा को टिकट नहीं देगी जो पार्टी में दूसरी पार्टी से छोड़ के आ रहे हैं, जिन्हें लोटा कहा जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं एनीथिंग इज पॉसिबल एट द मोमेंट। सरिश बिल्कुल, लेकिन तला अच्छा वैसे आप इस हवाले से कंफर्म है ऑफिशियली कोई ऐसा बयान काफली की तरफ से आया था कि PDM के साथ हैं, उनका हिस्सा है? चौधरी शुजात हुसैन साहब की परवेज इलाही साहब से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, परवेज इलाही साहब PTI में आ गए। तो चौधरी शुजात साहब जो हैं वो हर तरफ नरम गोशा रखते हैं, जरदारी साहब के लिए भी नरम गोशा रखते हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी, शहबाज शरीफ साहब के लिए। तो वो एक ऐसी गेम सियासत चलिए खैर देखते हैं आगे चल के क्या सिचुएशन बनती है। जरदारी साहब पंजाब में बैठ गए, कुछ ना कुछ तो करके ही आएंगे, 3 दिन वहां पर रहेंगे। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी रहा, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।